Hi Siddharth. Hi Pramod. Hello guys. I hope everyone is doing well during this quarantine and everyone is staying safe at home. Due to corona outbreak हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं. थोड़ा बहुत सबको प्रॉब्लम हो रहा है बट दिस इज़ द फेज वी शुड यूनाइट टुगेदर and fight against this corona pandemic. Um, so we are about to take our guest online now. Let's join our guest speaker. Our guest is here finally. I would like to give you a small and short intro about him. Uh, eh, this is Kshitij Yeah, hi, Bhandari Shruti. from I Mumbai. can hear you. Hi I cannot Kshitij, see you. मैं तेरे को देख नहीं पा रहा हूँ. but I can see you clearly. I think our viewers can also see you. Uh, yeah, they can see you. Can you hear me now? I can आवाज आ hear रहा है? you. I can see you also. But ऐसा कट कट Yeah. के आ रहा है. हाँ, थोड़ा नेट का इशू हो सकता है. आई थिंक our viewers can see. Yeah, It is yeah, better now. it's Better now. clear now. Can you hear Yeah, me? yeah, sure. It's clear now. Okay. Okay. So let me give everyone an introduction. So everyone knows me as Shekhar, the owner of the Motogenics bike shop, and here is we have started the RDX series. In short, it's um, the one of the desired series what we wanted to do through the discussions of the expert bikers. The full form of the RDX series is riding discussion with experts, and this is the first episode of the series. I would like to mention it here. So, giving an introduction about Kshitij. Uh, He's from Mumbai. He's one of the biking enthusiasts I know from a lot of years, I think. And he has over than 1 lakh kilometers under his belt. Uh, and talking about his touring experiences, he owns a Charisma ZMR and Ninja 650 as well. He had been to Ladakh and recently he have completed a Nepal ride on his Charisma ZMR. He have rode his Ninja 652 salt white salts in Run of Kutch recently, and there are a lot of rides he has done with both the bikes. You can call him an expert on road. Um, Apart from that, he is very much जेलप पर्सन लाइक बहुत टॉकेटिव है ये बंदा. एंड अगर मैं स्टार्ट करूँ ओनली उसके स्टोरीज सुनने के लिए तो शायद से हम लोग को एक पूरा वेब सीरीज स्टार्ट करना पड़ेगा 20 एपिसोड्स का. आई होप एवरीवन गेट्स मी. सो लेट्स स्टार्ट. हाय क्षितिज, Hi कैसे चल रहा Shiki. है? Nice to have you around and thanks for having me on your Insta page and क्या वेलकम. thanks for the super introduction. मतलब ये इतना formal introduction तेरे पास से मेरे लिए आ रहा है मतलब मेरे को खुद बहुत हंसने आ रहा था but ठीक है. Let's नॉट get going एक्सपेक्टेड. and ऐसा कुछ expert वगैरह नहीं है but we are just here to share experiences so let's हाँ get हाँ. going on. So um, let's start with casual questions at first. Okay. मोटरसाइकिलिंग बोल रहा हूँ जो मल्टीपल डेज से चलने वाला है. I'm gonna ask you a few questions, and we'll be discussing and most of all arguing or maybe debating on it. It depends on the point of views, but it's a casual discussion about biking and everything regarding the touring experience, what we had on our own bikes or through the friends and group rides, solo rides. Right. So, my
Yeah. So my first question is, how do you describe a long distance touring on a motorcycle? Okay, so considering our topic for the evening is a discussion on long distance motorcycle touring. So see, basically it is a very subjective matter. So किसी के Okay. लिए लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग अगर मैं बोलूँ तो वो किसी के लिए एक 100 किलोमीटर राइड कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस टूर, Yeah. किसी के लिए 500 किलोमीटर राइड अगर मैं बोलूँ वो एक लॉन्ग डिस्टेंस टूर हो सकता है. Mm-hmm. But for today's discussion, let's consider long distance touring as a tour which goes for multiple days. मतलब Okay. आज मैं गोवा जाकर वहां रहने वाला हूँ एंड नेक्स्ट डे मैं गोवा से वापस आने वाला हूँ. लेट्स नॉट कंसिडर दीज राइड्स, लेट्स कंसिडर राइड्स Okay. लाइक एक 5-7 डेज के ऊपर एक कोई राइड हो रहा है, या अगर मैं बोलूँ मुंबई से लद्दाख एंड रिटर्न आ रहा हूँ तो विच टेक समवेयर अराउंड ब्रीफली 17 to 18 days दैट. सो लेट्स Mm-hmm. कंसिडर दोज trips for today's discussion as long distance rides, because to define long distance ride मेरे लिए सही नहीं रहेगा, because शायद मैं एक ऐसा राइडर हूँ जिसके लिए मुझे ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि 200-250 किलोमीटर भी मैं बोलूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस है. बट फॉर सम ऑफ द व्यूअर्स हु बीन राइडिंग, जो दिन में यार 800 900 किलोमीटर के राइड्स करते हैं, उनके लिए Correct. शायद वो 800 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी होगा. नहीं भी So होगा. for Yeah. today's discussions, Subjective. let's stick to motorcycle rides which are going multiple days के लिए जो जाते हैं, because वहां पर है Mm-hmm. जहां पर अपने को सबसे ज्यादा प्लानिंग लगती है. Yeah. So let's take that up. Okay. Cool. Means it is again subjective. मतलब किसी को 100 किलोमीटर भी लॉन्ग Exactly, डिस्टेंस रह हर एक सकता है, किसी को 1000 किलोमीटर का भी शॉर्ट लग पर्सपेक्टिव सकता है है. अपना. एग्जैक्टली हर एक का एक पर्सपेक्टिव है. सो पर्सपेक्टिव है. आई थिंक जो व्यूअर्स से हमने इसके पहले कनेक्ट करने का कोशिश किया, सो देर आर Mm-hmm. पीपल हु वांट टू नो मोर अबाउट प्लानिंग ऑफ हाउ टू प्लान मल्टीपल डेज ऑफ मोटरसाइकिल टूरिंग. Yes. Yes. So Yes. we can get going on such of a topic. Yeah, sure. So, going on to the second question, I would like to ask you how to get comfortable on long distance riding. Okay. So again, getting comfortable on long distance tours अगर बोलते हो तो first you need to be comfortable with yourself and you need to be Mm-hmm. comfortable with your motorcycle. So Mm-hmm. being comfortable with yourself मैं बोल रहा हूँ because you need a decent amount of fitness. क्योंकि Right, लॉन्ग डिस्टेंस correct. टूर अगर मैं बोल रहा हूँ जो मल्टीपल डेज से चलने वाला है, Mm. एंड ऑब्वियसली हम यार ऐसा कोई लग्जरी टूर पे निकले नहीं है कि यार गाड़ी के अंदर बैठे एसी चल रहा है, बाजू में True. लेस का पैकेट है, आराम से खाते पीते जा रहे हैं, वैसा नहीं होता. सो नहीं होता. फॉर एडवेंचर वी पैक एज लिटिल एज पॉसिबल. सो Mm-hmm. हमें पता नहीं रहता कि यार कहाँ खाने मिलेगा, कहाँ पीने मिलेगा, या Mm. आज शाम को कहाँ ठहरने वाले हैं, या व्हाट काइंड ऑफ फूड आर वी गोइंग टू गेट. सो वो सारी चीजों के लिए अपना फिटनेस लेवल्स, अपनी इम्यूनिटी एक अलग लेवल की होना जरूरी है. एंड Mm-hmm. टू हैव दैट मेंटल स्टेबिलिटी कि यार अगर मैं 8-8 9-9 घंटे बाइक चला रहा हूँ, सो Mm-hmm. वो चीज के लिए भी एक थोड़ा मेंटल फिटनेस भी थोड़ा जरूरी होता है. तो लेट्स स्टार्ट विथ कंफर्टेबल लॉन्ग डिस्टेंस टूर के लिए एक थोड़ा फिटनेस लेवल अच्छा रखे एक मोटरसाइकिल टूरर, तो इट इज ऑलवेज बेटर. सेकंड अगर मैं आपको चीज बोलूं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन सेल्फ टू गेट अक्वेंटेड विद द मोटरसाइकिल विच यू आर राइडिंग. Sure. So I personally always like to take my own motorcycle on most of the tours. मतलब अभी हाँ. 2010 से मैं टूर कर रहा हूँ. Yes. None of my friends, मतलब कोई मेरा दोस्त ये भी नहीं बोला कि I have ever ridden anyone else's motorcycle, या I have never ever rented a motorcycle on any of my tours. I've done लद्दाख, नेपाल किया है, बाकी राइड्स भी किए. Mm-hmm. बट कंफर्टेबल अगर मैं बोलूँ तो आई एम ऑलवेज वेरी कंफर्टेबल विथ माई मोटरसाइकिल्स. Okay. अभी यू कैन कॉल इट कि यार when I'm talking about comfort, when I'm riding my motorcycle, जो क्या बोल सकता हूँ मैं, जो रिएक्शन टाइम रहता है that is always very quick. Okay. For Reflexes. Quick example, if I reflexes. am quick reflexes, exactly. So for example अभी यहाँ पर मैं आई एम इन मालवन, वन ऑफ माई फ्रेंड ओन्स अ एनफील्ड जो एक 92-93 के एनफील्ड है, जो जिसके गियर्स उल्टे हैं. सो Yes. जहां पर Yes. नॉर्मल बाइक के गियर्स होते हैं वहां उसका ब्रेक है. So when I'm riding that motorcycle, so I have to actually switch on all the switches on my mind and I have to ride a motorcycle. हाँ. Whereas अगर मैं मेरी बाइक चला रहा हूँ तो तुम बोल सकते हो कि इट इज लाइक एन इनवॉलंटरी एक्शन. मुझे पता है अगर बाइक चलाते हुए स्पीड ब्रेकर आ गया तो मेरे माइंड में ये नहीं आता कि अब मुझे ब्रेक दबाना है. ऑटोमेटिकली द मसल गोज ऑन Automatically टू द break ब्रेक. दब जाता है. एग्जैक्टली. सो वो एक चीज है वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वुड प्रेफर दैट यू राइड अ बाइक विच यू आर वेल अक्वेंटेड विथ. और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो, समझो
it is not possible for someone to ride the bike. समझो कोई साउथ से ले जाना चाहता है, I am not ले saying मार that रहा है, people हाँ. have not ridden their bikes from the south to Leh, but someone who doesn't want to waste those days and कोई दिल्ली में जाके हायर कर रहा है, हम्म, so for the first 2-3 days don't, मतलब थोड़ा एडजस्ट करिए with the motorcycle, get to know the motorcycle, get to know the controls, and एक 2-4 दिन होने के बाद में you can go ahead with however you want to ride the motorcycle, थोड़ा comfortable हो जाओगे. हम्म, Second और एक चीज when it comes to comfortable motorcycling is having a decent sense of how much luggage to carry. हम्म. So I have Right. learned it the hard way. तो जब मैंने टूरिंग चालू की थी तो मैं सारी चीजें, मतलब एवरीथिंग अंडर द सन आई यूज्ड टू टेक. आई यूज्ड टू कैरी अ टेंट. मतलब एक राइड तुम मुझे बोलेगा कि यार गोवा तक मुझे जाना है, विच इज अ 500-550 किलोमीटर राइड, हम्म, सो फ्रॉम मुंबई. सो वो करने में टेंट लेकर जाता था, मेरे जितने टूल्स होते थे वो सारे लेकर जाता था. फिर पानी के 2-3 बोतल लेकर चलो, फिर गैटोरेड लेकर चलो, ये लेकर चलो. सो व्हाट दैट डज इज, वो चीज बाइक में अननेसेसरी ड्रैग क्रिएट कर रहा था. हाँ, एंड हाँ. मेरे मन में जितना ज्यादा मैं लगेज लेकर चल रहा हूँ, उतना ज्यादा लगेज मुझे रोज शाम को अनस्ट्रैप करना है, रोज Yes. सुबह निकलने के पहले वापस से वापस स्ट्रैप करना स्ट्रैप ऑन करना. Yes. है. सो वो चीज वापस एक बहुत ज्यादा दिक्कत दे देती थी कि Okay. जितना ज्यादा लगेज लेकर चलो उतना ज्यादा लगेज मुझे खुद मैनेज करना है. सो अगेन दैट बिकम्स एन इशू. सम अदर पॉइंट्स, I think one of the you're one of the rider मैंने over the years मैंने भी जो लोग के साथ ride किया है, lot of riders are there with different motorcycles. You're one of the riders I've seen who always carry his artillery just like a war fighter. राइट. Each and every सो toolkit, each and everything carrying is like I think there are very few I've seen apart from myself. There are very few. You're one of them, and there are only a handful of people I've seen. राइट. सो अभी एज मोटरसाइकिल टूरिंग से यार बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे लोगों से सीखा हूँ. सो आई हैव मेट पीपल मोटरसाइकिल टूरिंग में जो मुंबई स्पीति मुंबई जिन्होंने किया है सिर्फ 2 बैग्स लेकर, एक टेल बैग एक टैंक Yeah, बैग. एंड टेल yeah. बैग भी इज नॉट द सैडल बैग आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स द हाँ, स्मॉल टैंक बैग जैसा टेल बैग जो पीछे लगता है, एंड एक टैंक बैग. इसके हाँ. ऊपर सोलो राइड किया हुआ है मुंबई स्पीति मुंबई. सो इट इज Okay. पॉसिबल. सो आई Yeah. ऑलवेज वांट टू इंटरेक्ट विद सच पीपल. तो इनसे मैं पता किया कि यार बॉस तुम इतना सामान, मतलब ऑल नेसेसरी कैसे ले? सामान कैसे कलेक्ट कर पाते हो इन सच अ शॉर्ट और इन सच अ स्मॉल स्पेस. सो व्हाट आई हैव लर्नड इज कि एक बार तुम 2 टी शर्ट कम कैरी करो, बट Yes. टूल्स एंड एक आई हैव नॉट, सच्ची बोलूं तो आई हैव नॉट सीन क्वाइट लॉट ऑफ राइडर्स व्हिच आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि मेडिकल बॉक्स ज्यादा कोई लोग कैरी नहीं करते. आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज, Okay. बट यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर द वर्स्ट. Okay. एंड एक मेडिसिन बॉक्स Basic जरूरी है, medicines. हाँ. बेसिक मेडिसिन होना जरूरी है. उसके साथ में जो बेसिक टूल्स लगते हैं फॉर योर मोटरसाइकिल, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेड, आई ऑलरेडी सेड कि बाइक के साथ अकस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो Yeah. तुमको पता है कि यार यूजुअली मेरी मोटरसाइकिल में ये चीज है जो मुझे मेंटेनेंस लगती है, से लगती है. टाइटनिंग ऑफ द चेन, फिर स्पार्क प्लग जो ओपन करने के लिए मुझे जो प्लग पाना लगता है वो चीज, फिर थोड़े बहुत फ्यूजेस जो मैं कैरी करता हूँ. सो ये जो सारी चीजें, इनको तो मैं डेफिनेटली डिडक्ट नहीं कर सकता मेरे नहीं कर लगेज में से. सकता. No, no way. कीप माई लगेज लाइट. ओवर द इयर्स अभी मैं जो कॉटन टी शर्ट्स कैरी करता था, नाउ आई हैव स्टार्टेड कैरिंग जर्सीज. Dry जर्सी का fits. क्या होता है, लाइट होता Yeah. है. एग्जैक्टली. Yeah. सो आज शाम को जहाँ मेरा राइड एंड हो रहा है, वहां पर बस पानी में भिगोया, झटका डुबो के सुखा दिया, नेक्स्ट डे तक वो सूख डाल गया. दिया. Yeah. नेक्स्ट एक और चीज विच आई हैव, विच आई एम, मतलब विच आई लव टू डू इज आई लव टू वेयर माई राइडिंग पैंट्स ऑन एनी ऑफ माई टूर्स. सो Yeah. समझो 15 दिन के टूर पे निकले हो, हाँ, 15 हाँ. दिन के टूर के लिए एक राइडिंग पैंट इज मोर देन Is इनफ. मतलब enough. ऑब्वियसली आई Enough. हैव नॉट Yeah. नोन एनीवन जो एक्स्ट्रा राइडिंग पैंट कैरी करता है. अगर Nobody. समझो राइडिंग पैंट तुम्हारे पास नहीं है तो तुमको उसको इक्विवेलेंट करने के लिए 3 डेनिम्स लेने पड़ेंगे Yeah. बैग में. 3 denims. 5 डेज के लिए तुम एक जीन्स पहनोगे. And plus सो वो the knee guards. एग्जैक्टली, प्लस नी गार्ड्स. सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि राइडिंग पैंट्स में इन्वेस्ट करो. इट सेव्स अ लॉट ऑफ लगेज स्पेस. डेनिम्स में चलो समझो वजन नहीं है अपने पास में, बट वो लगेज स्पेस बहुत ज्यादा कैरी करता है, बल्कि हो जाएगा लगेज. Exactly. सो वो एक Exactly. चीज है, अगर तुम जितना कम सामान रखो उतना तुम्हारा राइड कंफर्टेबल रहेगा. देन Correct. सम ऑफ द अदर टिप्स अगर मैं बोलूं तो जितना लगेज है वो अच्छे से स्ट्रैप करो.
देयर आर Okay. अ लॉट ऑफ ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू राइडिंग गियर एक्सेसरीज, मतलब लगेज एक्सेसरीज को लेके बहुत सारे ऑप्शंस है अपने Lot पास of अभी इंडिया options. में। Yeah. पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, मतलब 2010 में जब मैं था तभी एक टैंक बैग आया हुआ था, तब मैंने लिया हुआ था, शायद उसके पहले भी लोग यूज कर रहे थे, बट हम्म, पीपल व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू यूज देयर नॉर्मल जो कॉलेज जाने वाला बैग है उसको स्ट्रैप करते वही थे, बट हाँ, अभी कस्टम फिट बैग्स आए हैं, वो according to डालो bike. सो दैट एग्जैक्टली वो Yeah. डालिएगा अपने बैग पर, यूज देम, अपने बाइक पर यूज देम, बिकॉज वंस व्हेन दे आर स्ट्रैप्ड बिहाइंड, तुम्हारा दिमाग जो है वो सिर्फ राइडिंग पे कंसंट्रेट कर रहा है, Concentrate नॉट कर side. ऑन Yeah. कि मेरा बैग मेरे पीछे प्रॉपर्ली हाँ, स्ट्रैप्ड है या नहीं। yes, Second yes, important thing which I call the lifeline of motorcycle touring is invest in good quality bungee cords. yes. I have personally Definitely. seen bungee cords snap होते हुए, and Snap होते हुए. एक यार 50 या 80 रुपए के प्रोडक्ट के लिए अननेसेसरी लोगों ने अपनी टांगे तोड़वाई है। Right. हाँ. Invest in good quality bungee cords, strap your luggage quite well, pack your luggage sanely, unnecessary चीजें मत ले चलो, कहाँ जा रहे हो वहां पर वो चीज नेसेसरी है या नहीं है, ये चीज यस जैसे मेरा फ्रेंड राइडोजोम यहाँ कह रहा है कि यार जितना ज्यादा लगेज कैरी करते हो तुम्हारे बैक पे, मतलब बाइक के पीछे, उतनी हैंडलिंग को भी इफेक्ट होता है। सो एक आध दो Okay. दिन के लिए ठीक है, बट 15-15 16-16 दिन तुम यार ये बाइक के हैंडल वॉबल अगर हो रहे हो तो तुम ये नहीं मैनेज कर पाओगे, इट इज रिस्की। सो यस, बीइंग कंफर्टेबल में strap your luggage very well, pack your luggage very well, get to know your motorcycle quite well, and unnecessary वजन मत कैरी करो। Definitely. उसमें I would like to add a thing here. मैंने बहुत से लोगों को ऐसे भी देखा है कि they put the backpack on the handlebar through the mirror and उसको ride करते हैं, and they don't ride it below 60 or 80. They ride it like it's the last day of their life. Right, 120 130 पे they ride with such kind of thing. We know as a biker it is so risky, in time of a sudden emergency, अगर quick reflexes देना है, कट मारना है or anything, कोई obstacle बीच में आता है, we are staying in India, right, वहाँ पे bulls right. and anything, dogs are crossing the roads in the middle of highways, national highways. Right. तो ऐसे सिनारियो में what you will suggest to those people? देखो यार, आर रिस्पेक्टेड पीएम भी लोगों को ये बोल रहे हैं कि रास्ते पे मत निकलो, हाँ. जो सिर्फ उनको नहीं पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रहा है। Yes. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सजेस्ट, आई कैन एक्सप्लेन, देयर माइट बी क्वाइट अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स जो मैं खुद कर रहा हूँ, राइट, बट ये इफ आई एम राइडिंग में अकेले सोलो राइड कर रहा हूँ तो शायद ये मिस्टेक्स मुझे कोई पॉइंट आउट कर नहीं पाएगा। सो ऐसे जो लोग हैं इनसे यार मैं ये करना चाहूंगा कि यार हैंडल जो होता है दैट हैज टू बी फ्री मोशन ऑल द टाइम। अगर तुम्हारे बैग का एक स्ट्रैप समझो, सी आई एम ऑल्सो अगेंस्ट, आई एम नॉट वेरी श्योर यार, एक सेकंड, ये मैं गांव में हूँ, यहाँ पे मच्छर बहुत है इसलिए थोड़ा मैंने थोड़ा दबाव स्मोक किया हुआ वगैरह है। आ रहा है. हाँ, तो मैं थोड़ा बाइक को पीछे इफेक्ट भी आ रहा है, एनी विच वेज। सो बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ यार जो अपने मोटरसाइकिल को एक बहुत लंबा सा एक थ्रेड जैसा कुछ तो वो रिबन स्ट्रैप बांधते हैं, एंड देन दे प्लग इट टू देयर की एंड देन वो मिरर को लगाते हैं। आई हैव नो ऑफेंस अगेंस्ट इट, इफ यू फील इट इज सेफ, नो प्रॉब्लम। बट जितनी तुम्हारे बाइक पर लूज स्ट्रैप्स रहेंगी, कंसिडर इट मोटरसाइकिल के लगेज के स्ट्रैप्स हैं या कीचेन के स्ट्रैप्स है, ये सारी चीजें अगर तुम अच्छे स्पीड में चला रहे हो, डिसेंट स्पीड में चला रहे हो, ये फ्लटर होके कहीं भी फंस सकती है। वो तुम्हारे आगे के ब्रेक लीवर पे आ सकती है, लीवर्स में भी आ सकती है, वो कहीं भी जा सकती है। सो इट इज डेफिनेटली रिस्की, बट अभी यार ये बेसिक चीज है यार, दिस थिंग्स वी कैन नॉट टेल पीपल। अभी यार लोगों को इतने सालों से हम बोल रहे हैं कि रास्ते पे मत थूको, बट ये चीज नहीं हो पाई, नहीं सुनते। इट विल टेक टाइम, सी आई एम नॉट कंप्लीटली अगेंस्ट कि यार मैं बोल रहा हूँ कि नहीं यार ये तो कभी सुधरेंगे नहीं, इट विल टेक टाइम। मतलब राइडिंग हैज कम अ फार वे फ्रॉम व्हेन मैंने राइडिंग शुरू की 2010 में। यार मैंने खुद राइडिंग शुरू की स्लीपर्स, हाफ पैंट एंड टी शर्ट पे, वहां से अभी तक इट्स चेंज्ड अ लॉट। सो यस, इट विल टेक सम टाइम, लोगों को समझ आएगा। एंड यस, अभी ऑप्शंस भी अपने पास बहुत है यार। इंस्टेड ऑफ हैंगिंग देयर बैग ऑन द हैंडल बार, दे हैव एन ऑप्शन ऑफ अ टैंक बैग जो अभी इतने एक्सपेंसिव नहीं है। मतलब एक नॉर्मल बैग जो है
एक नॉर्मल बैकपैक जो है उसी के प्राइस में एक टैंक उसी बैग के आती है. प्राइस में. I've seen quite a lot of people using tank bag on a regular way on their work to office also Yeah, now. yeah, So it is lot of not only daily a touring commuters. accessory. Yeah. It is not only a touring accessory. So जैसे जैसे हम धीरे धीरे मतलब one person I know is you. I have quite a couple of other friends who own motorcycle apparels and accessory stores. So Yes. it is, I can say it not the responsibility is bestowed on you कि तुम कैसे सारे ये सारे products को normal लोगों तक लाओगे and you explain कि these are not only touring products, these are products of safely riding your motorcycles every day. So तुम ये Yes. bags consider करो, price difference ज़्यादा नहीं है एक normal backpack से. So this is one suggestion which I can give कि यार instead of that handle पे लगाने वाला चीज एक tank bag में invest करो यार. It is Correct. and टैंक बैग में यार तुम 2 या 3 दिन के कपड़े तो एंड सामान तो इजीली डाल सकते हो. सो Easily डेली डाल, कम्यूटिंग में easily. बिल्कुल इशू नहीं होना चाहिए. मतलब Yeah. मैं शायद 3 दिन के डाल सकता हूँ. मैं लोगों को जानता हूँ जो शायद हफ्ता हफ्ता या 4-5 मतलब एक 15 दिन के कपड़े तो एक टैंक बैग में ठूस ही लेते हैं. अपने से वो नहीं हो पाता. बंदा होना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए. हाँ. सो I hope you remember the ride, Ladakh ride. एग्जैक्टली. सो वो एक Uh, बाद में हम टॉपिक कवर करेंगे. ये आई यूज्ड टू डेली टैंक बैग ऑन माय वे टू वर्क. यस. कट. एंड let's लेट्स take a सी. question here. या. We have a question from Amol. So Amol have asked, what will be your suggestion for the people who want to start a long distance ride? From where we should start and how? फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट. ठीक है चलो. अमोल, कंसिडरिंग यू हैव एक सेकेंड कंसिडरिंग यू हैव नेवर रिडन अ मोटरसाइकिल से बियॉन्ड एक 50-60 किलोमीटर डिस्टेंस जो एक नॉर्मल मुंबई जैसे समझो अगर तुम डोंबिवली में रह रहे हो एंड यू आर वर्किंग समवेयर इन फोर्ट तो डोंबिवली करते हो तो एक 50-60 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है. समझो उसके आगे तुमको जाना है. सो I'll tell you how I began. It might not be मैं ये किसी को ये नहीं बोल सकता हूँ कि यार तुम सबसे पहले दिन 200 किलोमीटर कवर करो. I'll tell you how I began. I started doing a lot of breakfast rides because to be very frank घर पे इतने restrictions थे नहीं. Bike I got, घर वालों ने बोला कि जो भी करना है सेफली करो. So ऐसा नहीं है कि यार अगले दिन निकला और गोवा चला गया. I remember my first Goa ride. My mom was not agreeing to leave me alone. So one of my friends, Pramod, वो मेरी मम्मी को बोला कि आंटी टेंशन मत लो मैं इसके पीछे बैठूंगा एंड गोवा जाएंगे. सो इट स्टार्टेड विद दैट. सो Okay. एक दिन उठ के ये मत सोचो कि यार मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस जाना है चलो लद्दाख निकलते हैं. नहीं. स्टार्ट अप विद ब्रेकफास्ट राइड्स. देयर आर अ लॉट ऑफ बाइक राइडिंग कम्युनिटीज हु अरेंज दिस ब्रेकफास्ट राइड्स. सो अगर तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है इनके साथ में कांटेक्ट करो. लेट देम बी लेजिट पीपल. मतलब कोई भी ऐसा बोल रहा है कि मैं कल ब्रेकफास्ट पे जा रहा हूँ तो मत जाओ. Go with these people. You will be accustomed कि तुम कितना दूर चला सकते हो. When I started मेरा भी एक छोटा सा बाइक राइडिंग कम्युनिटी हुआ करता था, अभी भी है. So for these people जैसे अमोल जैसे मेरा दोस्त है वैसे मेरे बहुत दोस्त थे जो एक्टिवा ओन करते थे उस टाइम पे. उन्होंने मुझे बोला कि यार नहीं हमें भी बाइक राइड पे जाना है. तो मतलब चलो ठीक है एक काम करते हैं लेट्स ऑर्गेनाइज अ न्यूबी राइड. वो न्यूबी राइड हमने लोनावला में अरेंज किया हुआ था. तो मैं यूजुअली लोनावला ब्रेकफास्ट राइड पे जाता हूँ. अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock आई लीव. बाय 10:30 और 11 o'clock आई एम ऑलरेडी होम. सो इस राइड में ऐसा हुआ कि मैंने बोला सबको कि यार जो स्लोएस्ट राइडर है वो सबसे आगे लीड करेगा एंड जो फास्टेस्ट है वो पीछे रहेगा. सो हम इवेंचुअली लोनावला से रिटर्न हम शाम को 7:30-8 बजे पहुंचे थे. सो स्टार्ट अप विद स्मॉल राइड्स. ग्रेजुअली इंक्रीज करो. डोंट एक्सर्ट योर सेल्फ कि यार चलो फेसबुक पे बहुत लोगों को तुम देखते हो कि यार 1600 किलोमीटर दिन में मार लेते हैं, सैडल सोर मार लेते हैं या कुछ भी करते हैं. तो इनसे यू gain what best you can from these people, but don't compare and don't exert yourself with all these things in your mind. As I started off with कि long ride जो तुम्हारे लिए definition है वो शायद मेरे लिए अलग हो सकती है. A long ride for people must be a 800 किलोमीटर राइड या 15 दिन में 5000 किलोमीटर का राइड तुम्हारी लॉन्ग होगा. शायद मेरे लिए वो नहीं है. So gradually increase and definitely you'd be able to increase. मतलब obviously यार एक चीज को अगर तुम enjoy करोगे ना तुम उसे बार बार करना चाहोगे. If you enjoy riding the motorcycle you'd want to ride it a little more. अगर फर्स्ट राइड में मतलब मैं वो एक्टिवा वाले बंदे की बात कर रहा हूँ उसने उसके बाद कभी मेरे साथ वापस राइड नहीं किया. बोला यार नहीं क्योंकि लोनावला से आते आते उसके शोल्डर्स घुटने I know that guy very well.
सो बोला बस ये खत्म हो गई मेरे लिए. सो ऐसा नहीं है कि यार ही कैनॉट राइड लॉन्ग, बट मैंने बोला फिजिकल फिटनेस की थोड़ी जरूरत है. हाँ हाँ. Let your body, let your mind, let your liking get accustomed to such touring distance. And हम्म, ऐसा कोई डिस्टेंस नहीं है यार जो मोटरसाइकिल पे तुम कवर नहीं कर सकते हो. हम्म. लोग दुनिया घूम लिया है मोटरसाइकिल पे. आई नो ऑफ नो पीपल जो 223cc करिश्मा पे दुनिया घूम लिया है. यू डोंट Right. नीड अ GS 1200 टू विन 1200 दैट. hours. Yeah, yeah, exactly. Here we got a comment from Rohan, one of our NST guy. He said, राइट. "Start breakfast rides, shaky." अरे तेरे को तो पता है, you know it very well. We are organizing breakfast rides through Motogenics also. और ऐसे भी संडे को हम लोग चले जाते हैं राइड्स पे. हम लोग he राइट. also joined camping and ride to Bandardara. What we executed in January, I guess. He and his wife. So it was full of fun. Um, okay, let's get back to the next question. What CC bike is suitable for a long distance ride? One of the viewer asked us this question. Any CC bike is the Hmm. answer. So when you are planning on taking which motorcycle to where, Hmm. there is where मतलब I understand where the question is coming from. So Hmm. Hmm. जब तुम्हारा राइड प्लान कर रहे हो कि यार मुझे अमका फलाना डिमका इस लोकेशन पे जाना है, Hmm. फाइंड आउट मोर अबाउट द लोकेशन. टेरेन कैसा रहने वाला है वहां Hmm. पर, Conditions फ्यूल के. पंप्स की कंडीशंस कैसी है, वेदर कंडीशंस कैसा है, ये सारी चीजें तुम करो. दिस आई एम नॉट टेलिंग कि यार दिस विल डिसाइड कि वेदर आई शुड टेक अ 100cc बाइक और आई शुड टेक अ 650cc बाइक और अ 1300cc बाइक. नहीं, दिस आई एम टेलिंग सो दैट यू कैन प्रेप विच एवर बाइक यू हैव टू हैंडल दैट टेरेन. Yeah. बहुत ही ज्यादा दिग्गज लोग हैं यार जो स्कूटर पे लद्दाख करते हैं मल्टीपल टाइम्स. I know of females. I'm not being gender specific over here. I'm telling कि यार I know of people. I know जिन्होंने नॉन गियर स्कूटर के ऊपर भी लद्दाख जैसे टेरेन को कॉन्कर किया हुआ है. Uh-huh. So it does not matter whether you are taking a 100, 110 और a 150cc बाइक और a 650cc बाइक. तुम कहीं जैसे मैंने Definitely. पहले भी कहा 200 मतलब 223cc करिश्मा पे लोगों ने वर्ल्ड टूर किया हुआ है कंफर्टेबली. So it Comfortable. is not that you can take a specific CC bike or not. Yes, knowing the limitations of that Of your bike. motorcycle and knowing the kind of terrain that you are going to will Mhm. help you manage द जो प्रेशर आने वाला है कि यार यहाँ मेरी बाइक जाएगी या नहीं, इस चीज को हैंडल करने के लिए ये चीज मतलब अभी जैसे मैंने बोला कि यार लोग सुपर स्पोर्ट्स, आई नो ऑफ पीपल हु टेकन H2s टू लद्दाख. आई नो ऑफ Yeah, पीपल yeah. जिन्होंने Buza. बूसा लद्दाख में लेकर गए हुए हैं. Hmm. तो यहाँ पर डिसीजन ये है, अगर तुम कंपेयर कर रहे हो एक बूसा को और एक पल्सर को, बिकॉज Hmm. पल्सर 220 मैं बोलूँ या डोमिनार बोलूँ, सो यहाँ पर सीधी एक चीज है कि यार अगर मैं मुंबई से ले जाना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे शायद 1 या 2 दिन कम लगेंगे इफ आई एम टेकिंग अ बूसा, बिकॉज मेरा क्रूजिंग स्पीड अभी आई एम putting away the highway speed guns aside, but my cruising speed is going to be high on the Busa. High on मैं the Buza. थोड़ा फास्ट जाऊंगा but I'm going to burn more fuel, whereas on the Pulsar Definitely. I might not burn more fuel but शायद 1 या 2 दिन मुझे ज्यादा लगेंगे डेस्टिनेशन में पहुंचने में. So Right. ये सारी चीजें मन में रखो. Prep the motorcycle now. अभी of people who know me, they know I have prepped my Charisma ZMR for Nepal. I have Yeah. prepped my Ninja. I tour quite a lot with my wife. तो मैंने मेरे Yeah. दोनों भी मोटरसाइकिल्स को इस तरीके से प्रेप किया हुआ है कि जब वाइफ पीछे बैठती है तो शी शुड बी कंफर्टेबल. Comfortable. लगेज रैक्स Definitely. है, लगेज रैक्स है, बैक रेस्ट है, ये सारी चीजें. तो ऐसा नहीं है कि यार एक स्पेसिफिक बाइक एक जगह जा पाएगी, यार एक स्पेसिफिक बाइक इस जगह नहीं जा पाएगी. तुम उस बाइक को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके, थोड़ा बहुत मॉड करके, यू कैन मेक इट रेडी टू गो टू एनी टेरेन. जस्ट कीप इन माइंड वेदर, just keep in mind the capacity and the ability of the bike to handle everyday riding. तुम Yeah. कोई भी बाइक को भगा के नहीं ले जा सकते. नहीं. अगर तुम्हारी बाइक 40 स्पीड पर क्रूज करने बनी है तो 40 पर तुम जा सकते हो. मैं डेफिनेटली बोलता हूँ विद बेसिक मेंटेनेंस, विद नो मेजर इशू अगर कोई जाती है तुम दोनों बाइक चांद तक जा सकती है. बीइंग हाइपोथेटिकल बट दैट इज हाउ इट विल वर्क. Yes. सो Definitely. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इट इज ऐसा कुछ नहीं है यार कि यार एक स्पेसिफिक सीसी बाइक ही टूरिंग पे मैं ले जा सकता हूँ या नहीं. Cool, cool. So one more question we have from girl with the mountain, girl on a mountain. The question is how to select a riding partner for such a ride. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. सो 2 तरीके के राइड्स
मैं कंसिडर करता हूँ, एक जो होती है सोलो, एक होती है ग्रुप राइड्स। अभी इसमें मैं rides. राइडिंग पार्टनर बोल रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सन, आई एम कंसिडरिंग कि ये क्वेश्चन इज नॉट अबाउट हाउ आई विल सिलेक्ट हु इज गोइंग टू सिट बिहाइंड मी, बट हाउ आई एम गोइंग टू डिसाइड हु इज गोइंग टू राइड विथ मी। कि समझो मैं हाँ 3 जन, 4 जन, 5 जन, 25 जन हम राइड पे जा रहे हैं, तो वो 25 जन मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा। सो ओके इसका एक बहुत मतलब अगेन इस चीज को मैं बोलूंगा कि यार राइड विद द पीपल जिनके साथ तुम्हारा सबसे ज्यादा मैक्सिमम सिंक हो। सो आई राइड विद अ टूरिंग ग्रुप कॉल्ड एनएचटी। सो yeah उसमें आई हैव पीपल हु क्रूज एट 160s 170s, उसमें आई हैव पीपल हु राइड एट 40 किलोमीटर्स पर आवर। और take it. सो getting such people who will never leave you and such instances, obviously अभी एक 40 किलोमीटर आवर वाले पर्सन जो दोस्त है अपना, वो जब भी हम ज्यादा लॉन्ग टूर पे जाते तो ही जानबूझ के नहीं आता है, बिकॉज उसे पता है कि उसके वजह से बाकी टूरिंग जो बाकी ग्रुप है, टूरिस्ट लोग क्लैन है, उनको हो थोड़ा बहुत जाएगा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। या सो एक मीडियन पर जिनके साथ तुम राइड कर सकते हो उनके साथ में राइड करो। अगर इफ यू वांट टू राइड विद न्यू पीपल, जैसे ब्रेकफास्ट राइड्स मैं बोलता हूँ, सो राइड विद गुड कम्युनिटीज जिसमें देर इज अ नो गेट टू नो द लीडर, कि यार लीडर कौन है, हाउ इज ही गोइंग टू लीड द बंच। उनके साथ में यू कैन गो टूरिंग, और उनके साथ में यू कैन गो राइडिंग। एंड सो बेसिकली एक फ्रेम ऑफ माइंड सिमिलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारे राइडिंग पार्टनर्स के साथ, बिकॉज वंस व्हेन यू आर अवे फ्रॉम होम, they are your family, they are the ones who are going to get you back safe at home. So उन पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, दे शुड बी ट्रस्ट श्योर वर्दी, उनको तुम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए कि बस कम व्हाट में, बिकॉज यार एक लोग जैसा बोलते हैं कि यार लद्दाख में जब एक स्पेसिफिक हाइट के ऊपर लोग जाते हैं तो थोड़ा दिमाग सनक जाता है, लोग बहस ज्यादा कर लेते हैं। सो ऐसे टाइम पर जो तुम्हारे सच्चे दोस्त होते हैं, वो जब तुम सामने वाले पे तपोगे या सामने वाला तुम पे तपेगा, सो तुमको मालूम है कि बॉस ये कंडीशन ही ऐसी है, यस यस अननेसेसरली एवरीबडी ओवर हियर इज अ फैमिली। समझो, संभाल के लो, ऐसे लोगों के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस टूर करना मैं पर्सनली पसंद करता हूँ कि जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। अभी उनके साथ तुम राइड कर सकते हो, उनके साथ में राइड करो। अगर इफ यू वांट टू राइड विद न्यू पीपल, जैसे ब्रेकफास्ट राइड्स मैं बोलता हूँ, सो राइड विद गुड कम्युनिटीज जिसमें देर इज अ नो गेट टू नो द लीडर, कि यार लीडर कौन है, हाउ इज ही गोइंग टू लीड द बंच। उनके साथ में यू कैन गो टूरिंग, और उनके साथ में यू कैन गो राइडिंग। एंड सो बेसिकली एक फ्रेम ऑफ माइंड सिमिलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारे राइडिंग पार्टनर्स के साथ, बिकॉज वंस व्हेन यू आर अवे फ्रॉम होम, they are your family, they are the ones who are going to get you back safe at home. So उन पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, दे शुड बी ट्रस्ट श्योर वर्दी, उनको तुम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए कि बस कम व्हाट में, बिकॉज यार एक लोग जैसा बोलते हैं कि यार लद्दाख में जब एक स्पेसिफिक हाइट के ऊपर लोग जाते हैं तो थोड़ा दिमाग सनक जाता है, लोग बहस ज्यादा कर लेते हैं। सो ऐसे टाइम पर जो तुम्हारे सच्चे दोस्त होते हैं, वो जब तुम सामने वाले पे तपोगे या सामने वाला तुम पे तपेगा, सो तुमको मालूम है कि बॉस ये कंडीशन ही ऐसी है, यस यस अननेसेसरली एवरीबडी ओवर हियर इज अ फैमिली। समझो, संभाल के लो, ऐसे लोगों के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस टूर करना मैं पर्सनली पसंद करता हूँ कि जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। अभी आई कैन गिव यू नेपाल राइड का एग्जांपल। नेपाल राइड पे माय करिश्मा जेडमर, मतलब हमारा राइड जब कंप्लीट हुआ, जब हम हमारा वन वे डिस्टेंस जहाँ मुझे मस्तांग पे जाना था, लोअर मस्तांग, वो कंप्लीट किया, उसके बाद माय जेडमर ब्रोक। So I had two friends with me. I would like to name them Gaurav and Nitin. So I was very lucky that I chose them as my riding partners, or they chose me to come with them. They never let me down. उन्होंने बंद ZMR को धकेलते, खींचते, बस पे, ट्रक पे चढ़ाते हुए हम मुंबई तक लेकर आए। यहाँ पर ऑल्सो आई हैव वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी गुड फ्रेंड्स, मेलविन वगैरह। तो उन्होंने मतलब आई हैव बीन लकी टू चूज, और आई हैव बीन लकी टू बी चोजन as one of the riding partners who have never let anyone down, and no one lets me down also. So ride with the people whom you trust, ride with the people जिनके साथ maximum sync हो, ride with the people जो financially भी तुम्हें मतलब unnecessary कोई ऐसा दोस्त मिल गया कि यार नहीं यार तू मेरा दोस्त है बट मैं रात को आज 5 स्टार में ही रहना चाहूंगा, it is not feasible for नॉट all विजिबल motorcycle tourers यार, नहीं नॉट feasible है। सो ऐसे लोगों के साथ कहीं तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना है, कहीं उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना है, जहां पर सबसे कम कॉम्प्रोमाइज दोनों को करना है, ऐसे लोग ढूंढो, इनके साथ में राइड करो। एंड लंबे टूर पे पॉसिबली ऐसे दोस्तों के साथ जाओ जिनके साथ तुमने मल्टीपल राइड्स पहले किए हुए हैं, किया बिकॉज यू हुआ नो देयर मेंटालिटी।
Yeah. एंड तुम्हें पता है ये बंदा कैसा चलाता है, तुम्हें पता है ये बंदा ऐसे ही अचानक एक दिन 180 बन के अब तुमको छोड़कर नहीं जाएगा. सो yes, ride with people whom you know and ride with people whom you trust. Obviously make new friends, but एक 15-16 दिन के अगर राइड पर जा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नोन लोगों के साथ में जाओ. सो The people उन्हें you एंड तुम्हें know खुद को and you घूमने know दोगे how तो they छोड़ोगे. ride, how they react in situations, or एग्जैक्टली. you must have rode at least 2 to 3 rides with a specific guy before राइट such big rides. And राइट uh, okay, so next question is from one of the viewers. It's how many hours is suitable riding time for long hours? Means तो ऐसा कौन सा राइड होगा जो मैक्सिमम या मिनिमम में हम लोग बोल सकते हैं हाउ मेनी ओके आवर्स यू कैन से ओके सूटेबल. राइट. सो अगेन मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. बहुत सारे लोग हैं जो यार 24-24 मतलब मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ जो काठमांडू से भोपाल एक दिन में आया था. Right हाँ. from Kathmandu, he started riding. He owned a Dominar 400 then. वो काठमांडू से भोपाल एक दिन में आया, कहीं भी रुका नहीं. उसने मुझे लखनऊ से शायद फोन किया था कि दादा यार मैं लखनऊ पहुंचा हूँ, अभी अंधेरा होने वाला है तो मैं क्या करूँ, निकलो. आई सजेस्टेड कि नहीं यार रुक जा, बट ही न्यू हिज कैपेबिलिटीज, ही कुड राइड, वो निकला. सो डोंट गो ऑन हाउ मेनी आवर्स यू कैन राइड. अगर तुम एक 10-15 दिन के या 5-6 दिन के राइड पर जा रहे हो, पहले से ही तुम्हें तुम्हारी कैपेबिलिटी पता रहनी चाहिए कि यार दिन के मैं 5 घंटे चला सकता हूँ, यार दिन के मैं 10 घंटे चला सकता हूँ. सिर्फ सेफ्टी पर्सपेक्टिव से मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जल्दी निकलो. इन सिटीज लाइक मुंबई यूजुअली 6:30-7 o'clock को ट्रैफिक शुरू हो जाता है यार रास्ते पे. राइट राइट लाइक राइट. ऑन वीकेंड्स यार यूजुअली इस टाइम पे ट्रैफिक शुरू होता है. वीक डेज पे शायद थोड़ा लेट शुरू होता है बिकॉज वीकेंड्स पे यार लोग बाहर जाते हैं. मतलब एवरीबडी जस्ट वांट्स टू गो टू लोनावला, खंडाला, महाबलेश्वर, माथेरान, वेरेवर. सो थोड़ा जल्दी निकलो सो दैट यू अवॉइड द अर्ली मॉर्निंग ट्रैफिक. 5:30 तक निकलो ताकि तुम्हें जो सनराइज मैक्सिमम है डिस्टेंस कवर कर सके. हाँ. एग्जैक्टली मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर पाओ. एंड मैं ये नहीं बोलता कि सुबह 3 बजे निकलो बिकॉज 3 बजे से सनराइज समझो 7 बजे तक होता है, तो वो तुमको 4 घंटे डेस्टिनेशन जो है तक वो पहुंच अंधेरे में जाओगे. चलाना है. 4 घंटे जो अंधेरे में चलाना है. Which सो is again माई risky. पॉइंट इज exactly, so my point is I usually suggest and I usually ride with such friends who have the mentality कि सनराइज से थोड़े पहले निकलो एंड सनसेट होने पर रुक जाओ. मैं मेरे Right. राइड्स प्लान ऐसे करता हूँ कि यार wherever I reach I should reach somewhere around sunset. अंधेरे में मोटरसाइकिल्स मत चलाओ. बहुत लोग हैं जो चलाते हैं जो कंफर्टेबल है, आई एग्री, गलत नहीं है. एज अ मैटर ऑफ सेफ्टी मैं पर्सनली एक बार सनडाउन होने के बाद में अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो मैं बाइक नहीं चलाता. हाँ अगर मुझे कहीं पहुंचना ही है देन आई नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस बिकॉज देखो यार बीइंग अ मोटरसाइकिल यू हैव टू अग्री टू द फैक्ट दैट यू आर द स्मॉलेस्ट थिंग मूविंग ऑन On the द road. हाईवे. On the yeah. राइट. तुम सबसे छोटी चीज हो जो हाईवे पर चल रहे हो. प्रोबेबली यू माइट बी द फास्टेस्ट थिंग बट यू आर द स्मॉलेस्ट. ट्रक्स के ब्लाइंड स्पॉट्स में आ सकते हो, गाड़ियों के ब्लाइंड स्पॉट्स में आ सकते हो अंधेरे में. सो मत करो अनलेस इट इज वेरी नेसेसरी दैट चलो अपने को पहुंचना ही है, थोड़ा सेफली जाओ. सो ऐसा कोई आर नहीं है कि यार मैं 10 घंटे चलाओ, बोलो 10 घंटे चलाओ कंफर्टेबल हो, 2 घंटे चलाओ कंफर्टेबल हो. डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स. सिर्फ इतना याद रखो कि यार टेक ब्रेक्स, थोड़ा बहुत बट ब्रेक्स लो, थोड़ा बहुत पानी ब्रेक्स लो. कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. अभी आई नो अ डॉक्टर फ्रेंड हु राइड्स अ निंजा. सो वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि यार राइड पे हम जब भी बहुत ज्यादा धूप में मतलब राइड करते हैं तो वी टेंड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स. थम्स अप पीते हैं. मत पियो Intense बिकॉज दैट soda. अगेन डिहाइड्रेट्स योरसेल्फ. सो अगर तुम ये डिहाइड्रेट करोगे तो तुम शायद ज्यादा नहीं चला पाओगे, तुम्हारी बाइक, तुम्हें ज्यादा थकान होगी, यू विल टेक मोर नंबर ऑफ ब्रेक्स. वैसा मत करो. सो Try कंफर्टेबली to राइड go for करो. natural drinks like sugar cane एग्जैक्टली or कोकोनट kokum वाटर पियो, and पानी yeah, पियो यार, पानी सब yeah. जगह अवेलेबल है. पानी पियो, कोकोनट वाटर, हैव जूसेस, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड इन अ गुड वे. सो 10 घंटे चलाओ, 5 घंटे चलाओ, 2 घंटे चलाओ, 1 घंटे चलाओ इज नॉट द आंसर. राइड एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल. सेफ्टी प्रिकॉशंस, राइड जस्ट बिफोर सनसेट और राइड जस्ट मतलब सनसेट होने पर राइड बंद कर दो यार. बिकॉज एक अच्छी नींद भी हो पाएगी तुम्हारी एंड नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ के निकल सकते हो. सो Right. दैट्स Correct. So
Getting to the next question, one of our viewers is asking, is going solo on such trip is suitable or not? अगेन सी इट इज अ पर्सनल पर्सपेक्टिव कि मैं सोलो जाना चाहूंगा या मैं ग्रुप के साथ जाना चाहूंगा. दोनों भी चीजों के अपने पॉजिटिव्स है, अपने नेगेटिव्स है. सोलो के पॉजिटिव्स अगर मैं तुम्हें बोलूं, लेट्स स्टार्ट विद पॉजिटिव्स ऑफ गोइंग सोलो. तुम तुम्हारा राइड खुद प्लान कर सकते हो. यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी अदर राइडिंग पार्टनर. जो मैं तुम्हें बोल रहा था कि कॉम्प्रोमाइज करके मीडियन पे आना है, तुम्हें उतना कॉम्प्रोमाइज करके मीडियन पे भी नहीं आना है, बिकॉज यू आर द डिसाइडिंग पर्सन. तुम डिसाइड You are the करोगे boss. कब निकलना है, कितना चलाना है, कहाँ रुकना है, कितना खर्चा करना है एंड वॉट एवर. सो ये सारी चीजें तुम खुद डिसाइड कर सकते हो अपने लिए. Right. Right. बट इसके नेगेटिव्स भी है कि यार जस्ट इन केस मिडल ऑफ द हाईवे कुछ हो जाता है एंड यू नीड समवन. मतलब मैं एकदम बेसिक चीज बोलता हूँ कि समझो बाइक बंद हो गई एंड तुम बाइक को, तुमको समझो किसी ने बोला कि नहीं अब तुमको यार 10-15 किलोमीटर बाइक ढकेलनी है. अकेले रहोगे तुम बाइक ढकेल सकते हो, बट सोचो कि अगर तुम्हारे साथ कोई और होता तो इट वुड हैव बीन मच इजियर टू Yeah. रीच द लोकेशन वेयर Your योर बाइक next कैन बी. destination. Yeah. राइट. सो किसी और के साथ चला रहे हो, ग्रुप बोलो कि यार 5-7 जने या कोई और एक बंदा भी तुम्हारे साथ में है, इट मेक्स द राइड मोर कंफर्टेबल. बिकॉज तुमको मालूम है कि जस्ट इन केस थिंग्स गो रॉन्ग, एटलीस्ट मेंटल सपोर्ट देने के लिए कोई बंदा तुम्हारे साथ में है कि यार भाई Moral टेंशन support मत के ले, लिए कोई है. सॉल्व कर लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा. वर्स्ट केस सिनेरियो, तुम तुम्हारी बाइक कहीं सेफली पार्क करके उसके बाइक पे हॉप इन कर सकते हो एंड यू कैन रीच सम प्लेस जहां पर तुम दिमाग ठंडा करके सोच सकते हो कि अब क्या करना है. Yeah. अकेले जाओगे तो ये एक चीज शायद तुम नहीं कर पाओगे कि समझो कहीं फंस गए तो यू आर स्टक बिग टाइम. समझो तुमको कुछ हो गया, सो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव सम नोन पर्सन अराउंड यू रादर बीइंग हेल्प्ड फ्रॉम सम अननोन पीपल. देखो भारत में यार मैंने जितना भी टूर किया हुआ है, मुझे कभी डर नहीं लगा कि यार यहाँ अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो आई विल नॉट बी एबल टू फाइंड हेल्प. इंडिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है. लोगों ने हर जगह पर हर एक बंदे को हेल्प किया हुआ है. बट ये एक चीज क्यों मन में लानी है? सो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि एटलीस्ट एक बंदा अपने साथ में चले. साथ में एक Right. बंदा जिसके Right. साथ मेरा राइडिंग मैच होता है, मैं उसे बोलता Two कि यार भाई are मैं ऐसे better than राइड one. पर जा रहा हूँ, लेट्स गो. बट अकेले जाना मैं भी प्रेफर नहीं करता हूँ. प्लस और एक चीज है कि यार अकेले जाओगे तो घर वालों के सर पे ज्यादा टेंशन होता है कि यार ये हाँ. अकेले गया है. समझो फोन नहीं लगा तो स्ट्रेस में आ जाता है कि यार इसका फोन नहीं Stress लग में रहा आ है, पता जाता नहीं है. कहाँ. एटलीस्ट एक बंदा साथ में है, अगर उसका भी फोन नहीं लगा तो लोगों को लगता है चलो उसका भी नहीं लगा मतलब नेटवर्क के बाहर है. No network. एग्जैक्टली. सो And इट at इज least you can ऑलवेज drop a message to the other guy. So जो अपना राइट. बंदा है घर वाले उसको रिवर्ट कर सकते हैं राइट. उसके थ्रू. So एग्जैक्टली. सो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ द थिंग्स. both. डेफिनेटली सोलो राइड करना चाहिए बिकॉज व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, मतलब समझो यार मंडे टू फ्राइडे काम करके यार बहुत थक वक गए हो, तो देयर इज नथिंग अदर देन अ Better. सोलो राइड व्हिच एक्चुअली फ्लशेस आउट योर माइंड. राइट. सो Yes. एक आध दो 1 डे और 2 डे और मारो यार, एक 2 नाइटर मारो. सोलो राइड इज द बेस्ट सोल्यूशन टू फ्लश योर माइंड फ्रॉम ऑल द कॉर्पोरेट प्रॉब्लम या बर्डन जो तुमने मंडे टू फ्राइडे में लिया है, एंड देन नेक्स्ट मंडे यू कैन गो टू वर्क एकदम स्ट्रेस फ्री जा सकते हो. बॉस का बट दिया हुआ ग्रुप टेंशन राइडिंग फ्लश ऑल्सो. आउट करके. एग्जैक्टली. बिकॉज जैसा हम बोलते हैं कि यार आई हैव बर्न सम फ्यूल बट देन आई हैव एम्प्टीड माय ब्रेन टू गो Yeah. टू वर्क ऑन मंडे. Yeah. सो ये सोलो राइड में बहुत एक मतलब इट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग जिस वजह से लोग सोलो राइड करना चाहते हैं कि यार बॉस सोलो राइड में यार दिमाग अलग लेवल का शांत होता है. सोलो राइड करो, इट हैज हिज ओन एड्रेनलिन. मैं बोल सकता हूँ कि सोलो राइड में जो एक डर रहता है ना अपने ऐसे मन में कि यार शिट अभी हुआ तो क्या होगा, अभी कुछ हुआ तो क्या क्या होगा, होगा? ये एक अलग मजा है. Yeah. सो हम जैसा बोलते हैं ना कि यार एक नशा है, वैसा एक अलग नशे में जब तुम बाइक चला रहे हो, ऑब्वियसली दिमाग तुम यू हैव टू कीप कॉन्सेंट्रेटेड. बट जब वो चीज आती है ना तो उसके बाद जो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है, जब तुम राइड अकम्प्लिश करते हो उसके बाद जो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आती है वो एक अलग लेवल की है जो Yes. शायद ग्रुप राइड में नहीं आएगी. बट देन अगेन कीप प्रोज एंड कॉन्स इन योर माइंड, सी व्हाट इज सूटेबल. बड़े राइड्स पर जा रहे हो, एक कोई बंदे को एटलीस्ट साथ में ले जाओ. नो मैटर अगर तुम अकेले जाना चाहते हो अकेले जाओ, बट देन प्रिपरेशंस भी उस तरीके से करना कि हाँ तुम अकेले जा रहे हो. ऑल बेसिक नेसेसरीज. हाँ अगर तुम्हारे साथ में कोई है तो तुम्हें पूरा लगेज नहीं उठाना. यू कैन टेल कि यार बॉस मेडिकल बैग, मेडिकल जो चीज है वो तू मैं तेरे पास रख, टूल्स मैं मेरे पास रखूंगा. अकेले जा रहे हो तो मेडिकल किट भी तुमने उठाना है, टूल्स भी तुमने उठाना है, Tools भी तुमने. पंक्चर किट भी तुमने उठाना है. तुम्हारा सामान तो ऑब्वियसली तुमने ही उठाना है. और So, गाड़ी पंक्चर होती है एक- तो धक्का भी तुम्हें लगा. एग्जैक्टली. हाँ तू एनफील्ड राइडर है, तुझे पता होगा.
Not getting onto Been through motorcycles. bad I love patches. every Yeah. bike. Not Yeah. going to motorcycles. I love each and every motorcycle. I have ridden quite a lot of motorcycles. It is not about the bike. It is about that particular नसीब है यार. हर हाँ, किसी हाँ. का नसीब है. लोग मुझे Puncture बोलते is थे कि purely nasib factor. 110% एग्जैक्टली nasib लोग factor. मुझे बोलते हैं कि Difficult. यार फ्यूल इंजेक्टर बाइक्स आर बेस्ट फॉर द माउंटेन्स. माय फ्यूल इंजेक्टर फेल्ड इन नेपाल Yeah. एंड कार्ब बाइक्स जो थे वो अच्छे से चल रहे थे. वो अच्छे सो वो से चल नसीब रहे की थे. चीज है यार. नसीब नसीब. इट इज नॉट कि यार बस ये बाइक खराब है यार वो बाइक अच्छी है. नहीं है. इट इज हाउ वेल यू मेंटेन योर बाइक. You maintain your अगर bike. अगर मैं ये बोल सकता कि बॉस मुझे 100% दावा देता हूँ कि यार इस राइड पे कुछ नहीं होगा, सेफली जाओगे, सेफली आओगे, तो देर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते मोटरसाइकिल टूरिंग, तो वो भी एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ हंड्रेड हाँ परसेंट हाँ मालूम है हाँ. कुछ नहीं होने वाला है, जाओ आ रहा हूँ. कुछ नहीं. बट ऐसा नहीं बोल सकते. देर आर थिंग्स विच हैपन विच मे नॉट हैपन. ऑल यू कैन डू इज बी रेडी टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट टू टैकल इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग. Right. वो एक यहाँ पर एक राइडोजोम ने एक और क्वेश्चन पूछा है. व्हेन एवर यू फील स्लीपी शुड यू टेक हॉल्ट. Yeah. We स्लीप can इज द take मोस्ट question. इम्पोर्टेंट पार्ट व्हाइल राइडिंग. ऑब्वियसली मतलब अगर तुम जैसे मैं करता हूँ कि यू हैव टू बी अटेंटिव. तुम अगर सोते हो तो तुम्हारे बॉडी के मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स नहीं बोल सकता, मोस्ट ऑफ द स्विचेस आर स्विच्ड ऑफ. Yeah. मत करो ऐसा. Sensors are नींद switched आ off. रही है ना यार, नींद आ रही है. जैसे मैंने बोला भारत एक बहुत सेफ देश है. कोई ढाबा ढूंढ लो, Hmm. कोई सिक्योर प्लेस, कोई झाड़ वाड़ ढूंढ लो, Hmm. बाइक लगाओ, सो जाओ, Hmm. टेक अ पावर नैप, मुंह धो लो, टेक अ पावर नैप, मुंह धो के फिर सैडल पे जाओ. डोंट रिस्क योर लाइफ जस्ट टू प्रूव टू योर सेल्फ कि नहीं मुझे नींद आ रही है बट फिर भी मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता हूँ. मत करो ऐसा. Yeah. सो नींद अगर आ रही है ना, तो ये तो मैं सिर्फ मोटरसाइकिल टूरर्स को नहीं, ये मैं गाड़ी चलाने वाले लोगों को भी बोलना चाहूंगा कि अगर तुम नींद आ रही है ना तो गाड़ी पार्क करो. ये मतलब मैं बहुत बचपन से आई हैव बीन ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट गोवा, मतलब मालवन से मुंबई, मुंबई से मालवन, बिकॉज मालवन इज माय हाउस. आई स्टे हियर नाउ. आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम मुंबई. Yeah. Yeah. सो पहले कभी कभार जब भी जस्ट गाड़ी चलाना शुरू किया था तो 500 किलोमीटर के बीच में, मतलब 200-250 के बाद में थोड़ा बहुत ऐसे झपकी आ जाती थी. गाड़ी लगाओ बाजू में, चाबी रो बाजू वाले सीट पर या ग्लव बॉक्स में डाल दो, कान से थोड़ी थोड़ी ऊपर करके थोड़ी ऊपर रखो एंड सो जाओ आधे घंटे के लिए. Hmm. आधे घंटे बाद उठो एंड बाकी 200 किलोमीटर कवर करने के लिए यू आर फ्रेश. सो नींद में मत चलाओ. अगर तुम्हारा डेस्टिनेशन अगर समझो और 200 किलोमीटर पे है और 7-8 बज चुके हैं और तुमको नींद आ रही है, थोड़े बहुत पैसे 500-700-800 1000-1200 रुपए की जो बुकिंग कर दी है ना यार दोस्तों, बिलीव मी, इफ इट इज नॉट अटमोस्ट नेसेसरी, वो 1200 रुपए तुम्हारी जान ले लेंगे. Yes. छोड़ दो 1200 रुपए. आसपास अगर कोई सेफ जगह है, पुट अप योरसेल्फ ओवर देयर, हैव अ नाइस नाइट स्लीप, नेक्स्ट डे वो डिस्टेंस कवर करो. जस्ट बिकॉज प्री बुकिंग की हुई है वो 1200 रुपए कवर करने के लिए नींद में मत चलाओ. मत चलो. इट यू नेवर नो. मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत हो ही जाएगा, बट इट इज लाइक ऐसा जो कंफर्ट, जैसे मैंने बोला कि यार हाउ टू राइड योर बाइक कंफर्टेबली, तुम कंफर्ट जोन के बाहर हो अपने. सो मत करो. नींद में मत चलाओ. नहीं, इतनी जरूरी नहीं है अपने को घूमना फिरना. इतना necessary. जरूरी नहीं है कि तुम नींद में चला के अपने को और अपने फैमिली को रिस्क में डाल रहे हो. मत करो. Right. So let's take a next question. One of our viewer is asking. Uh, oh my God, there are a lot of questions coming in. It's Okay. not time. I think I would like to add here. We have got many questions, but due to time constraint, we can't take all the questions here. But definitely we'll take those questions. You can DM me on my personal account on Insta, me or Kshitiz as well. But Yeah. I will be selecting one question here from Swara. The question is, as a woman rider, what? Sorry. What would you suggest a woman rider? How should she start riding, or what tips she should take care while riding on highways as a woman rider? Okay. See, I always say that मैं आई एम द लास्ट पर्सन हु वुड एवर जेंडर डिस्क्रिमिनेट. कि मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि ये नहीं कहता कि यार लेडी एक ये काम कर सकती है, बंदे ये काम नहीं कर सकते. Yeah, देयर आर लॉट ऑफ इंस्पायरिंग फीमेल राइडर्स. बहुत ज्यादा definitely, इंस्पायरिंग फीमेल definitely. राइडर्स है हु हैव, मतलब मैं शायद 1 लाख किलोमीटर कुछ नहीं है,
लोगों ने शायद Nothing. एक एक ट्रिप पे मतलब एक 5-7 ट्रिप में लाख भर किलोमीटर को उड़ा दिया हुआ है। ऐसे Yes. फीमेल राइडर्स को मैं जानता हूँ। Yes. टेक इंस्पिरेशन। इंडिया इज, टू बी वेरी फ्रैंक गाइस, मैं बोल रहा हूँ, इंडिया इज अ वेरी सेफ कंट्री फॉर टूरिंग। Hmm. नेपाल मैंने टूर किया हुआ है, द मतलब आई वुड नॉट, ऐसा मैं ओपनली नहीं कहूंगा, Hmm. कंपैरेटिवली इंडिया इज अ वेरी सेफ कंट्री फॉर Yes. टूरिंग। हाँ, हम हमेशा एज अ ब्रदर, आई वुड से, नॉट एज अ मेल गाय, मतलब ऐसा मैं लड़के के इससे नहीं बोलूंगा, एज अ ब्रदर आई वुड से, इफ यू वांट टू स्टार्ट टूरिंग, ट्राई स्मॉल डिस्टेंसेस, टूर विथ फेलो राइडर्स, ग्रुप Yeah. में जाओ, Small या groups. भाई को लेकर जाओ, दोस्त को लेकर जाओ, सिस्टर को लेकर जाओ, या और कोई राइडिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी लड़के को लेकर जाओ, जस्ट कोई फीमेल को साथ में लेकर जाओ, क्योंकि Mhm. तुम्हारे मन में रहता है कि मेरे साथ कोई है, just Yes. because you are getting accustomed to it and you are someone new to touring. So Mhm. ऐसा कुछ नहीं है यार जो तुम कर सकते हो और हम नहीं कर सकते, या मैं कर सकता हूँ और तुम नहीं कर सकते। इट इज तुम नहीं नथिंग कर लाइक दैट। यस, एक चीज मैं हमेशा एक फीमेल राइडर को कहना चाहूंगा कि यार, मतलब आई लेट मी कंपेयर दिस टू मी राइडिंग अलोन एंड मी राइडिंग विथ माय वाइफ विथ मी। सो जब मैं मेरे दोस्तों के साथ में जाता हूँ या मैं सोलो जाता हूँ ना, आई रियली डोंट मैटर कि मैं आज रात को कहाँ सोने वाला हूँ। सकते। डेस्टिनेशन मार्क्ड रहता है कि यार एक शाम को 7-8 बजे तक इस जगह के आसपास पहुंचूंगा, बट होटल वोटल बुकिंग नहीं करता मैं कभी। बट व्हेन आई हैव माय वाइफ विद मी, आई हैव टू बुक अ डिसेंट होटल। वो Yes. जब भी मेट वाला डिसेंट होटल नहीं, एक अच्छा होटल जिसके बारे में मैं एक्चुअली गूगल पे 10 मिनट सर्च करूंगा, रिव्यूज पढ़ूंगा, कि भाई 2-4 जन को पूछूंगा जो वहां जाके रहे कि भाई ये होटल कैसा A है। good experience. सो एग्जैक्टली, सो ये मैं मतलब जस्ट एज अ ब्रदर आई एम टेलिंग यू कि यार नहीं, ये एज अ रिस्पेक्ट टू द फीमेल ये मैं बोल रहा हूँ कि यार ये थोड़ा Hmm. एक टाइम इन्वेस्ट करो एंड रात को पुट अप इन अ गुड डिसेंट होटल, एंड प्रेफरेबली अगर आसपास कोई रिलेटिव विलेटिव रह रहेगा तो सीधा उसी घर में जाके मतलब Bindas. एकदम बोलने वाला, भाई मैं आ रही हूँ, मैं आई वांट टू स्लीप फॉर द नाइट, मस्त में खाना वाना भी अपना सेट हो जाता है। मैं तो खुद मतलब मैं खुद ये ट्राई करता हूँ कि अगर मैं Yes. ऐसे कोई लोकेशन से गुजरने वाला हूँ, मैंने बहुत दोस्त बनाए हुए हैं टूरिंग, मोटरसाइकिल टूरिंग से, जिनको मैं कभी मिला नहीं हूँ, बट आई नो कि अगर मैं यहाँ से भोपाल जा रहा हूँ, मैं यहाँ से इंदौर जा रहा हूँ, मैं इससे नॉर्थ में कहीं भी, या नेपाल साइड कहीं भी राइड कर रहा हूँ, या लद्दाख साइड जा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यार इन दोस्तों को फोन लगाऊंगा मैं शाम को, मेरा भाई 3 घंटे में घर पहुंच रहा हूँ मैं। Right. सो फॉर मतलब मुझे ये क्वेश्चन कैसा आंसर करना है मुझे पता नहीं है, बट इट इज नथिंग डिफरेंट फॉर यू और फॉर मी टू राइड। इंडिया इज अ सेफ कंट्री, आई रिपीट इट अगेन। बिंदास निकलो, सिर्फ थोड़ा कंफर्टेबल होने के लिए पहले दोस्तों के साथ में राइड करो, प्लान इट अ लिटिल मोर। जैसे लड़के निकलते हैं कि भाई बस निकल लिया, क्या होगा देखा जाएगा, वैसा मत करो। सो थोड़ा अच्छे से प्लान करो, एवरीथिंग इज वेरी कंफर्टेबल, एवरीथिंग इज सेफ, यू कैन डेफिनेटली राइड एंड डेफिनेटली टेक इंस्पिरेशन। मतलब मैं बंदा हो के भी मेरे बहुत सारे बंदे हैं, मेंटर्स हैं मोटरसाइकिल टूरिंग में, जिनको मैं देखता हूँ, उनके व्लॉग्स पढ़ता हूँ, जिनके ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, एंड आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। Take inspiration from such female riders. There are a lot of female riders in the country who really tour, मतलब hardcore tourers हैं. Get in touch with them. Most of the motorcycle tourers are very friendly. So कोई तुम्हें ना नहीं बोलेगा कि to give you suggestions. Get in touch with them. They'd be able to help you with all the intricacies of how a woman should ride. But कोई टेंशन नहीं है यार, मुझे तो नहीं लगता। Cool. Cool. Uh, so Kshitij, this question I'm gonna ask you is one of the common question will be as it's we are close to 5 to 8 now. ये question में पूरे series में everyone who is gonna be my guest, who is gonna be a speaker, I'm gonna ask this same question to each and every speaker throughout the season of RDX. And the question is, what do you think about Indian biking community, or any suggestion or any improvement you think which we can improve in Indian Right. biking community? Right. कोई So ऐसी चीज है जो तुम्हें खटकती है बाइकर्स की, या कोई गलत चीज, एनी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन और एनी रॉन्ग मेथड्स which bikers are following, which you would like to suggest on this platform? अगेन यार, टू बी फ्रैंक यार, 2010 से जब मैंने मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया तब से 2020 तक, मतलब आई नो द डिफरेंस इन माई सेल्फ कि मैं पहले कैसे बाइक चलाता था, अब मैं कैसे बाइक चला रहा हूँ। सो दैट हैज कम थ्रू अ लॉट, राइडिंग विद अ लॉट ऑफ न्यू पीपल, राइडिंग मतलब ज्यादा किलोमीटर्स कवर किए हैं,
So I am a part of quite a lot of riding communities in India. बाहर के भी है because I have my एक ninja owners group है which has people from overall the globe. तो उनके riding blogs वगैरह पढ़ते हैं हम. So definitely riding community मतलब तुम देखते हो क्या ब्रेकफास्ट राइड पे भी अभी इतने लोग निकलते हैं. So this is something which we as bikers and अपने पहले जो टूरिंग जो बाइकर्स हैं उन्होंने अपने में इनकलकेट किया है. Yes, yes. मेरे भी बहुत ज्यादा सीनियर्स है, मैं बोल सकता हूँ सीनियर्स नहीं बोल सकता, Older generation. पीपल है whom I look up to, उनसे मैं सीखा हूँ. Mhm. मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पार्ट. वाज वेरी लकी दैट आई चोज देम एज माय राइडिंग पार्टनर्स और दे चोज शुरू होता है बिकॉज वीकेंड पे यार लोग बाहर जाते हैं. मतलब एवरीबॉडी जस्ट वांट्स टू गो टू लोनावला, खंडाला, महाबलेश्वर, माथेरान, वेयरएवर. Trip is suitable or not? अगेन मतलब अगर तुम जैसे मैं करता हूँ कि यू हैव टू बी अटेंटिव. तुम अगर सोते हो तो तुम्हारे Sorry. What would you suggest a woman rider? How should she? नेपाल सीनियर्स नहीं बोल सकता, Older generation. पीपल है whom I look up to, उनसे मैं सीखा हूँ. Mhm. मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पार्ट ऑफ अ बाइक राइडिंग कम्युनिटी और अ बाइक राइडिंग फ्रेटर्निटी कि आई हैव टू पुश फॉरवर्ड दैट टू माय नेक्स्ट जनरेशन जो अभी टूरिंग में जैसे मैं बोला कि अभी जस्ट एंटर कर रहे हैं या करना चाहते हैं. सो बाइक राइडिंग कम्युनिटीज हैव रियली हेल्प. अभी आ रही है, वी आर डेवलपिंग मोर सच Slowly we इंफ्रास्ट्रक्चर. are developing. Yes. थोड़ा रुको Yes. अभी. मतलब आई रियली अप्रिशिएट दिस केटीएम के जो ट्रैक डेज रहती है. आई Track रियली days. अप्रिशिएट दैट बिकॉज Even दे आर BMW गिविंग GS अपॉर्चुनिटी. they- They are giving Yeah. opportunity to the rider to do all these things to race in an controlled environment. So ये सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप हो रही है. So मत करो, don't put yourself onto risk, don't put the others who are sharing the highway on the risk. So ये चीजें मत करो बिकॉज एंड जैसा तूने मुझे बोला कि यार बहुत सारे लोग हैं जो एक अलग रिस्पेक्ट से मोटरसाइकिल टूरर्स को देखते हैं. सो मैं पर्सनली ये चीज शेयर करना चाहूंगा कि यार थोड़े साल पहले तक जब भी हम कोई टोल नाका या जब भी कोई नाकाबंदी क्रॉस करते थे तो हमें ये राइडिंग जैकेट्स एंड राइडिंग बूट्स एंड ग्लव्स में हेलमेट में देखकर पुलिस रोकती थी रोकती थी. कि यार ये Yes. रेसिंग कर कर आया है. Yes. Yes. उसे बाजू में लो, पेपर्स चेक करो. Papers check करो. अब अभी नाउ इट हैज टर्न द अदर वे राउंड. Other way. जब वो Yes. कोई टूरर को देखते हैं उनको पता चलता है कि नहीं ये इसके इतनी सारी papers भी चीजें clear है. मतलब Yeah. Yeah. एग्जैक्टली कि जब He is वो well इतना prepared guy. खर्चा करके बाइक राइडिंग गियर्स खरीदा है, उसने इतने ढंग से चला रहा है तो ऑब्वियसली यार वो एक 80 इसके रुपए का पेपर के बारे में वो लिए नहीं करेगा. 80 रुपए नहीं के करेगा. पीयूसी के लिए नहीं सोचेगा. नहीं वो अपनी सोचेगा. बाइक को टॉप नॉच कंडीशन में रखेगा, मेंटेनेंस अच्छा रखेगा, पेपर्स अच्छे रखेंगे. एंड आई एम वेरी श्योर मोस्ट ऑफ यू ऑल विल अग्री टू इट कि अभी नाकाबंदी पे ज्यादा टूरिंग सेटअप में जो बाइक राइडर्स चलते हैं उनको नहीं रोकते. Okay, I would to interrupt only 15 seconds now. Last question I would like to ask you. Thanks everyone for being here. DM me. Mangoes कब मिलेंगे क्षितिज? As I said, safety is the foremost